Yes, students, a very good morning to you all and welcome to the class. And I hope you all are doing great. कैसा चल रहा है सब? I think everybody is fine at their places and you are studying too because as you all know that अब यही mode है. In the present circumstances we have to study with this mode. So we have to be more punctual, we have to be more regular and we have to concentrate on our studies whichever way we are going to have it. So now see, we are going to start with chapter number 7, that is Birth by A.J. Cronin. Now this is just an excerpt from a Citadel by Andrew Manson. Now Andrew Manson was who? Andrew Manson was a newly out of medical school. It has just begun his medical practice and he was an assistant to Dr. Edward Page in a small Welsh mining town of the Blanley. And वो return कर रहे थे from a very disappointed evening with Christine, and Christine is the girl he loves the most. And as soon as he reaches home, he is met by Joe Morgan, and Joe and his wife, they are married for nearly 20 years and they are expecting their first child. Now you can see, जहाँ पे birth है, वहाँ पे child का होना जरूरी है as a character. And you can see that after the 20 years of marriage, if somebody is expecting a child, so you can just have this much senses कि आप समझ सकते हो that how important that particular child will be for the parents. वैसे तो हर चाइल्ड अपने पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट यू कैन जस्ट सी द ईगरनेस और द वेट दे हैव बीन डूइंग फॉर दिस मोमेंट. नाउ सी, okay, so now we are going to move with the text. So this is a story about a husband and wife, that is Joe and his wife Susan Morgan. Now they are expecting their first child after the 20 years of their marriage. And now as Susan is in the painful situation, now they need a doctor and they just cannot take the risk. किसी भी तरह का रिस्क वो नहीं लेने की पोजीशन में है. नाउ दे नीड अ डॉक्टर एंड जो डॉक्टर उनको अपने घर के आसपास या इमरजेंसी में जो डॉक्टर उनको मिलते हैं, द नेम ऑफ द डॉक्टर इज एंड्रयू मेंसन. एंड हु वी नो वेरी वेल कि एंड्रयू मेंसन एक न्यूली मेड डॉक्टर है. जस्ट वी कैन से दैट ही हैज जस्ट पास्ड आउट हिज मेडिकल स्कूल और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज. एक छोटा सा माइनिंग टाउन है वेल्श, ब्लैनली नाम के एक प्लेस पे, वहां पे. सो कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और वो बहुत ज्यादा फेमस डॉक्टर हो ऐसा भी नहीं है. तो इट वाज क्वाइट अ काइंड ऑफ रिस्क, बट व्हेन यू डोंट हैव अ चॉइस यू हैव टू टेक अ रिस्क. आप ऐसे ही नहीं चीज को छोड़ सकते हो भगवान के भरोसे पे, है ना. सो द सेम थिंग हैपेंस हियर. ना उनके पास क्योंकि कोई और नहीं था, तो जो हेल्पलेसली वो गए उन्हीं डॉक्टर एंड्रयू मेंसन के पास गए, उनको रिक्वेस्ट किया दैट प्लीज कम एंड हेल्प माय वाइफ. नाउ सी, इसी तरह से स्टोरी. नाउ अल्टीमेटली एट द लास्ट व्हाट ही इज गोइंग टू रियलाइज दैट व्हेन यूजिंग हिज कंसाइंस कंसिडरेशन, जो हम बोलते हैं बहुत ही प्राइम कंसिडरेशन, इन सब के बाद में उन्हें जब ये चीज रियलाइज होती है दैट यस वो लाइफ में कुछ कर पाए, इफ ही इज एबल टू गिव लाइफ टू समवन, दैट इज ही हैज रियली अचीव्ड समथिंग इन लाइफ. तो ये जो पूरी सिचुएशन होती है, वी कैन से दैट यस इस सिचुएशन ने उनको किस पोजीशन पे लाके रखा है. इस पोजीशन का मतलब है दैट यस ही हैज अचीव्ड समथिंग इन लाइफ. तो वो बोल सकते हैं दैट नाउ आई कैन जस्ट फील एंड आई कैन जस्ट से कि अब मेरी लाइफ का पर्पस कहीं जाके कंप्लीट हुआ. अभी तक मुझे ऐसा लगता था दैट इफ यू आर अनहैप्पी एंड इफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन लाइफ दैट मींस आपकी लाइफ वेस्ट है, बट अभी ऐसा नहीं है. नाउ सी, अब ये कह रहे हैं Though it was nearly midnight when Andrew reached Bangor and he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance of the house. At the sight of him, the burly Diller face expressed relief. Ah, doctor, I am glad to see you. I have been back and forward here this last hour and the missus wants you before time too. Now उन्होंने बोला though it was nearly midnight, जब एंड्रयू वहां पे आते हैं, the time Andrew is coming, it's nearly what time? Midnight. And उन्होंने देखा जब एंड्रयू वहां आए that Joe Morgan was already waiting for him, walking up and down the short steps between the closed surgery, that is उनका जो क्लिनिक था जो भी बंद था वो, and the entrance of the house. वो चक्कर पे चक्कर काट रहे थे. And at the sight of this burly driller, that is इस burly driller किसको कहा गया है यहाँ पे? डॉक्टर एंड्रयू को. देखते ही द फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, तो उसी समय जो के चेहरे पे रिलीफ दिखाई दी.
And he says, doctor, I am so glad to see you. I have been back and forward this last hour. मेरी वाइफ को आपकी बहुत जरूरत है, and she is in pain before time too, and I really need you to save my wife and my child. Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affair, told Morgan to wait. अभी तक एंड्रयू वॉज लॉस्ट, वो अपनी खुद की कंटेम्पलेशंस में, अपनी खुद की परेशानियों में उलझे हुए थे. बट हियर ही जस्ट रिकॉर्ड फॉर हिज ओन अफेयर. यहाँ पे उन्होंने अपनी खुद के बारे में जो बात होती है उन्होंने उसको दिमाग से निकाला. एंड ही सेज, ओके मॉर्गन प्लीज वेट. ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग. अपना बैग लेने गए. देन टुगेदर वो लोग वहां से मूव किए. 12 बेलिना टेरेस, ये उनका एड्रेस था. एंड द नाइट एयर वाज वेरी कूल एंड द डीप with quite mystery. बहुत डीप थी, बहुत कूल थी, बहुत क्वाइट थी, बहुत मिस्टीरियस सी नाइट थी. यूजुअली सो परसेप्टिव, इतनी परसेप्टिव. एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस. एंड्रयू ने अभी बहुत ही डल और बहुत ही लिस्टलेस फील किया. एंड ही हैड नो प्रीमोनिशंस दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल. एंड उनको कोई पहले से नहीं पता थी ये चीजें कि ये नाइट इतनी अनयूजुअल होने वाली है. Still less that it would influence his whole future in Blanley. और उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि ये इतनी अनयूजुअल नाइट होने वाली है और इस रात को इतना कुछ होने वाला है that this is going to influence उनका जो ब्लैनली में पूरा फ्यूचर है ना, द कमिंग फ्यूचर, उसको इफेक्ट कर देगी ये नाइट. उन्हें नहीं मालूम थी ये चीज. Now the two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. अब ये दोनों के दोनों चुपचाप चलते गए अपनी अपनी लेवल पे. सब अपनी अपनी बातें सोच रहे थे. एंड्रयू वाज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, जो अपनी ही चिंता में थे. एंड बोथ केप्ट ऑन वॉकिंग 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 एंड दे रीच्ड टू द नंबर 12 जो उनका एड्रेस था. ड्रॉ जू अप शॉर्ट. अब जो थे वो वहीं पे रुक गए. एंड सेज, मैं नहीं आऊंगा अंदर, ही सेड. His voice showed signs of strain. उनकी आवाज में घबराहट थी, डर थी. But man, I know you will do well for us. But man, I have belief on you, and I know तुम जो भी करोगे तुम सही करोगे. And you are going to do right for us. You are going to do well for us. वो डॉक्टर को बोलता है that आप अंदर जाओ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैं नहीं आऊंगा. Because he was already worried. वो already worried थे. Inside a narrow stair up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. Here Mrs. Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. अब inside a narrow stair lead up to a small bedroom, जो एक छोटे बेडरूम तक गया. क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड. क्लीन था, पुअरली फर्निश्ड था, एंड उसमें एक छोटा सा ऑयल लैम्प जग रहा था, बस, उससे ज्यादा रोशनी भी नहीं थी. वहां पे मिसेस मॉर्गन की मदर थी. शी वॉज अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन जो नियरली 70 years old थी. एंड शी वॉज अ स्टाउट काइंड, एक स्टाउट सी एल्डरली मिडवाइफ भी थी वहां पे. And she was waiting, standing between the patient and watching Andrew's expression. और खड़ी खड़ी she was just looking at Andrew, and Andrew का expression देख रही थी as he moved about the room, जब वो रूम में इधर उधर घूम रहे थे. Let me make you a cup of tea, doctor. Better, said the former quickly after a few moments. कुछ देर बाद जो ग्रैंड मदर थी, उस बच्चे की जो ग्रैंड मदर थी, आप कह सकते हो मिसेस मॉर्गन की जो मदर थी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने देखा कि कहीं डॉक्टर जो है वो देख रहा है कि अभी तो यहाँ करने को कुछ नहीं है, ये डॉक्टर है भी परेशान, इसे बिजी रखने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग कुछ करें. तो उन्होंने बोला, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी. मैं आपके लिए एक चाय बना दूं डॉक्टर. बेटर. एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली. एंड्रयू ने बहुत ही फेंटली स्माइल किया. एंड ही सॉ दैट द ओल्ड वुमेन, उन्होंने देखा कि वो जो ओल्ड वुमेन थी, वाइज इन एक्सपीरियंस, दैट इज उनकी एज बता रही थी, दैट शी वाज वेरी मच एक्सपीरियंस, रियलाइज्ड there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. उनको ये एक्सपीरियंस ये बता रहा था दैट उनको ये चीज रियलाइज हो गई है दैट ये पीरियड ऑफ वेटिंग जो है इट्स गोइंग टू बी अ ट्रबल. एंड वो डर रही थी दैट इफ डॉक्टर ये कह के यहाँ से चले गए दैट आई वुड रिटर्न लेटर एज देयर इज सम टाइम, तो डॉक्टर इज नॉट गोइंग टू कम बैक. अब मदर को ये डर लग रहा था. डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे. बट डॉक्टर वाज सो इंटेलिजेंट. डॉक्टर उनका चेहरा देख के समझ गए दैट व्हाट एक्चुअली द फियर इज इन दिस मदर्स माइंड. So he says, मदर डरो मत, I will not run away. मैं भागूंगा नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ. Down in the kitchen, he drank the tea.
which she gave him, and down in the kitchen उन्होंने उस चाय को पिया, drank the tea which she gave him, जो उन्होंने उनको दिया, and overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. डाउन इन द किचन वो गया, वो वहां पे बैठा, उन्होंने उसको चाय दी, उन्होंने चाय को पिया. नाउ ओवररॉट विद हिज थॉट्स, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, जैसे हम बोलते हैं ना ओवर एग्जॉस्टेड था वो. एंड ही न्यू, वो जानता था दैट ही कुड नॉट स्नैच इवन अ आवर स्लीप इफ ही वेंट होम. उन्हें पता था कि अगर वो घर चला जाए वो 1 घंटा भी नहीं सो सकते, उससे पहले ही हैज टू रिटर्न बैक. ही न्यू टू, वो जानते थे that the case here would demand all his attention, कि ये जो केस चल रहा है यहाँ पे, it's going to demand all my attention because the things are not so easy. A queer lethargy of spirit came upon him. बहुत ही लेथार्जिक सा फील किया उन्होंने, बहुत थके हुए, टायर्ड, बर्डन्ड, अजीब सा महसूस कर रहे थे. He decided to remain until everything was over. And he decided to remain until everything was over, जब तक कि सब चीजें ठीक नहीं हो जाती. मैं यहीं पे रुकूंगा जब तक ये पूरा केस वेस सब कुछ सही सॉल्व नहीं हो जाता. आई एम गोइंग टू बी एट दिस प्लेस. एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन. 1 घंटा लेट वो गए वापस. नोटेड द प्रोग्रेस मेड, उन्होंने नोट डाउन किया द प्रोग्रेस दैट वाज मेड. केम डाउन वंस मोर, सेट बाय द किचन फायर. एक बार फिर वो आए, किचन फायर के पास में बैठे. इट वाज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ द सिंडर इन द ग्रेट. बहुत शांति थी, सिर्फ जो उस ग्रेट में जो फायर बर्न हो रही थी एंड जो कोल के क्रैकिंग की जो साउंड्स आती हैं, वो सिर्फ वही आवाजें आ रही थी बस, और कुछ भी नहीं था. एंड स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक. No, there was another sound, the beat of Morgan's footsteps as he paced in the street outside. एक और आवाज भी थी, एंड वो क्या थी? मिस्टर मॉर्गन के पैरों की आवाज. वो गली में इधर उधर जब चक्कर काट रहे थे इन द स्ट्रीट आउटसाइड, टेंशन में, उनकी जो फुटस्टेप्स की आवाज थी, दैट वाज आल्सो क्लियरली हर्ड. बिकॉज मिडनाइट का समय था. मिडनाइट में आपके सराउंडिंग्स की सारी जितनी भी आवाजें होती है वो तो एक तरह से चली ही जाती है. The old woman opposite him sat in her black dress. और वो old woman जो उनके opposite थी, she sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise. वो बहुत ही क्या थी? motionless. उनकी जो eyes थी strangely alive and wise, probing, never leaving his face, and she's never going to leave her face. His thoughts were heavily muddled. अब वो ओल्ड वुमेन तो कंटिन्यूसली डॉक्टर को देख रही थी कि क्या हो रहा है, बट डॉक्टर वो हेवीली मडल्ड अप थे अपने थॉट्स में. द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड, जो सीन पूरा बेचारे फेस करके आए हैं एट द कार्डिफ स्टेशन, ही वाज स्टिल ऑब्सेस्ड विद दैट थिंग मॉर्बिडली. वो बहुत परेशान थे. ही थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ द balm well, and foolishly, that how foolish that he was devoted to a woman who deceived him sordidly, जिन्होंने बहुत ही sordid way में उसको deceive किया, धोखा दिया. of the Edward Page, वो वहां पे थी, bound to a shrewish Baldwin of Denny, living unhappy apart from his wife. फिर उन्होंने देखा सेकंड चीज, दूसरी वुमेन के बारे में उन्होंने सोचा, द ब्लॉडवेन ऑफ डेनी, जो बहुत ही अनहैप्पीली ही वाज लिविंग अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ. His reason told him that all these marriages were dismal failures, and ये reasons उनको पता थे that ये जितनी भी marriages हैं, these were not the happy marriages, these were the dismal failures, and it was a conclusion. और इससे आप एक conclusion निकाल सकते हो, which in his present state, जो उनकी अभी की जो present state थी, the state he was, made him wince. तो उनको भी पता चला दैट वो भले शादी में नहीं थे, he was in relationship, but in that also he was unsuccessful, and he has faced the unsuccess, and that is why he is troubled so much. He wished to consider marriage as an idyllic state. उनकी इच्छा थी that he is going to consider marriage, कि marriage तो एक बहुत ही ideal सी state होती है life की. But yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. Yes, he could not, नहीं कर सकते, अदरवाइज he is going to consider it. अगर वो consider करेंगे तो he is going to consider it with the image of who? Image of Christine before him. Her eyes shining towards him, उनकी जो आंखें जो उनकी towards shine कर रही है, admitted no other conclusion. कोई और conclusion नहीं समझ में आता उनको. It was the conflict between his level,
doubting mind and his overflowing heart, which left him resentful and confused. अब देखो ये situation क्या है? He is muddled up between three things. That is what? There's a conflict जो है between his level, उनकी level, doubting mind and the overflowing heart. उनका level क्या है? उनका जो mind जिसमें it's full of confusion, it's doubtful, and उनका heart which is overflowing with emotions. इन सब चीजों के बीच का एक conflict है, और इस conflict का result क्या है? That he is left resentful and confused. वो दुखी है और बहुत ही confused है. He let his chin sink upon his chest, and he let his chin, जो उनकी chin है, like आप ऐसे sitting position में हो, he is having his chin sink upon his chest and stretched out his legs, and the legs are stretched out. ठीक है, legs in a stretched out situation, and he stared broodingly into the fire. और वो ऐसे बैठे बैठे किसको देख रहे हैं? Just the fire. He remained like this so long, और वो इतने समय तक he just remained like that, and his thoughts were so filled with Christine, और जो उनके thoughts थे, they were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him, and he was so much filled with the thoughts of Christine, and he was just started, वो इतने हैरान हो गए किस समय? The time just an old woman who was sitting opposite him suddenly addressed him. He was startled and he just came out of his thought process. हाँ जी, और उन्होंने एकदम से उसको एड्रेस किया, and he says her meditation had pursued a different course. उन्होंने बोला the meditation जिसमें वो थे वो एक different course में चला गया था, but now he is out of that meditating position. Now Susan said not to give her the chloroform. अब Susan आती है ना, Susan is saying कि डॉक्टर तो अपने थॉट्स में लॉस्ट होता जा रहा है, कहीं इसका नुकसान हमें नहीं हो जाए. तो what did Susan said? Susan ने बोला not to give her chloroform. अब Susan ने ना उसका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश की, and she tried to talk him, but the thing she was talking about is not useless. And Susan says, sir, whatever process you are doing with my daughter, Susan ने बोला है, ऐसा आके वो ग्रैंडमदर बोलती है, that not to give chloroform to her, उन्होंने बोला because she is awfully set upon this child. Doctor better. Her old eyes warmed at the sudden thought. ऐसा कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, and she says, doctor, my daughter wants this child madly, and please, she has says कि ऐसी कोई भी चीज मत करना that directly or indirectly is going to harm my child, and chloroform can harm my child, so I will bear the pain, but please don't give chloroform to me during that procedure. She added in a low tone. अब उन्होंने ऐसी एक low tone में add किया. Not only Susan wants this child, we all are. I fancy. हम सबको चाहिए. I fancy. I can say that. Now doctor collected himself with an effort. पूरी हिम्मत इकट्ठी की. Now he stand erect in a straight position. बैठे and उन्होंने बोला, It won't do any harm. The anesthetic. ये सिर्फ anesthetic है. हम इसको उतनी अमाउंट में देंगे ही नहीं. वी जस्ट गिव इट इन सच अ कैलकुलेटेड फॉर्म कि ये किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं होगा. इट वोंट डू एनी हार्म. बहुत ही काइंडली डॉक्टर ने रिप्लाई दिया, एंड दे विल बी ऑल राइट. और दोनों बिल्कुल ठीक रहेंगे, आप टेंशन मत लो. नाउ ऑन दैट पॉइंट नर्स की वॉइस आ जाती है. द वॉइस ऑफ द नर्स वाज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग से. एंड्रयू glanced at the clock. एंड्रयू ने क्लॉक देखा, which now showed 3:30. और कितने बज चुके थे? 3:30. that is 3:30 midnight. He rose up and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his work. He woke up, खड़े हुए. He went up, actually he rose up and he went up to the bedroom, and he perceived that he might now begin his work. अब वो अपना काम शुरू कर सकते हैं. An hour elapsed. घंटा भर बीत गया. It was a long harsh struggle. और क्या था? Long harsh struggle. बहुत मेहनत का काम था. Then as the first streak of the dawn strayed past the broken edges of the blind. जो blind fold होता है, that is a kind of blind in front of that windows की broken edges में से जब first streak of the dawn came, the child was born. तब उस बच्चे का birth हुआ after such a long struggle. But you know, the child was born lifeless. वो बच्चा कैसे born हुआ? Dead. That is lifeless. As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew.
When Andrew came across the fact that, and he kept on gazing at that still life form, और वो still life form किसको कहा गया है? The dead child. The horror, shiver of horror, एक कपकपी सी छूट गई, and it was full of horror that what this has happened. After all that he had promised, सबसे बड़ी बात उन्होंने प्रॉमिस किया था that everything is going to be all right and both of them are going to be all right. अब क्या होगा? His face heated with his own exertion, chills suddenly, and वो जो face which was heated with his own exertion suddenly got chilled down. जब आप बहुत परेशान हो जाते हो, when you are suddenly in a shocking position, शरीर ठंडा हो जाता है एकदम, तो यही एक chill situation हो गई किसकी? एंड्रयू की. He hesitated, हड़बड़ाए, वो परेशान हुए, हिचकिचाए, torn between his desire to attempt to rescue, take the child and his obligation towards the mother. Now because he was torn, वो ना फंस गए थे between the two situation, that is उनकी इच्छा, his desire कि वो एक ऐसा एफर्ट करे जिससे कि वो इस चाइल्ड को सेव कर सके. And the second is, on the other hand, his obligation towards the mother, उनकी जिम्मेदारी, उनकी necessity to save the mother, जो क्या है, who was herself in a desperate state, जो खुद अभी एक बहुत ही desperate state में है. The dilemma was so urgent, he did not solve it consciously. The dilemma, ये परेशानी, ये confusion, it was so urgent कि वो बहुत consciously इसको solve नहीं कर पाए. He was not able to solve it consciously. Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed. But blindly and instinctively, उन्होंने उस बच्चे को तो नर्स को दे दिया, and उन्होंने अपनी complete attention किस तरफ दे दी? Susan Morgan की तरफ, the mother, जो अभी बिल्कुल कैसी पड़ी है? She is also now lying in a collapsed situation, almost pulseless. बिल्कुल उसकी भी almost pulse जा चुकी है, थोड़ी बहुत इक्की दुक्की कोई पल्स चल रही है सूजन की भी, and not yet out of ether upon her side. And she is also, अभी वो she is not out of the ether, that is अभी also she is not out of the, जो हम बोलते हैं ना, the anesthesia जो उनके पास में था, अभी वो उसकी situation से भी बाहर नहीं आई है. Now upon her side, his haste was desperate, उनकी haste जो थी, it was desperate, a frantic race against his ebbing strength, जो उनकी एबिंग स्ट्रेंथ थी, उनके अगेंस्ट एक फ्रेंटिक रेस थी. एंड इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन. और उनको कितना लगा? उनको समय नहीं लगा. इट जस्ट नॉट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट की बात लगी, एक पल की बात थी. दैट ही स्मैश्ड अ ग्लास एम्प्यूल. एम्प्यूल समझते हो? इंजेक्शन देखा होगा आपने, छोटी सी कांच की शीशी में इंजेक्शन आता है, उसको एम्प्यूल कहा जाता है. तो उन्होंने उस एम्प्यूल के ग्लास को ब्रेक किया, मेडिसिन सिरिंज के अंदर इंजेक्ट की, and he flung down the hypodermic syringe, that is जो एक सिरिंज होती है जो आप ह्यूमन बीइंग के जब इंजेक्शन लगाते हो यूज करते हो, उसको उन्होंने लिया. and working unsparingly to restore the placid woman, और बस उन्होंने अपनी जी जान लगा दिया just to restore this placid woman, this lifeless and almost collapsed woman जो थी उसको. After a few minutes of a feverish effort, एक कुछ मिनट के feverish effort के बाद में her heart strengthened, उस वुमेन का हार्ट थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ. एंड ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, और उन्होंने देखा कि वो सेफली उसको छोड़ सकते हैं. ही स्वंग राउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स, और उन्होंने ही जस्ट स्वंग राउंड, पलटे, इन हिज शर्ट स्लीव्स, his hair sticking to his damp brows. शर्ट स्लीव्स थे उनके, बाल जो थे, इतना पसीना आ चुका था उनको घबराहट के मारे, जो हेयर्स थे दे वर स्टिकिंग इन द डैम्प ब्राउज, और इस तरह से वो इतने ज्यादा परेशान थे. नाउ मदर तो ठीक हो गई, नाउ इसी परेशानी में ही जस्ट टर्न्ड एंड ही सेज वेयर इज द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है? मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर, मिडवाइफ ने बहुत ही घबराया हुआ सा एक जेस्चर दिया कि क्या? शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, कि उसने तो उस बच्चे को बेड के नीचे रख दिया. इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल्ड डाउन, जैसे उसका इशारा देखा, जस्ट अ जेस्चर, एंड्रयू नील डाउन किया नीचे, एंड फिशिंग अमंग द सॉर्डन न्यूज़पेपर बिलो द बेड, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड. सॉर्डन मींस यूज्ड, वेट, वर्म, रॉटन न्यूज़पेपर्स का ढेर जो पड़ा था, जो उन्होंने इस टाइम पीरियड में, इस प्रोसीजर के दौरान पता नहीं अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए होंगे. ही जस्ट फिशिंग इनसाइड इट. आपने फिश को देखा है जब फिश स्विम करती है हाथों से ऐसे, तो जब आप हाथों से चीजों को इधर उधर करके यू फाइंड आउट समथिंग, तो यू आर जस्ट इन अ फिशिंग पोजीशन. तो ही वाज जस्ट फिशिंग अमंगस्ट द सॉर्डन न्यूज़पेपर बिलो द बेड एंड ही पुल्ड आउट द चाइल्ड. उन्होंने उस बच्चे को निकाला.
नाउ यू कैन सी, बच्चा तो इस तरह से फेंक दिया गया था वहां पे जैसे कि कोई गार्बेज हो, बट इट वाज नॉट लाइक दैट. अ बॉय perfectly formed, and a perfectly formed boy it was. The limp warm body was white and soft as tallow. और ये जो लिम्प सी वार्म बॉडी थी, गरम गरम बॉडी थी उस बच्चे की, बट वाज लिम्प. लिम्प मींस नो स्ट्रेंथ. एवरी ऑर्गन वाज जस्ट लाइफलेस एंड वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो. टेलो मींस बहुत जैसा हार्ड फैट होता है ना एनिमल्स का, जब उसको मेल्ट किया जाता है, उसको सोप बनाने के लिए या कैंडल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो कितना सॉफ्ट होता है. जस्ट दैट सॉफ्ट वाज जस्ट लाइक द टेलो. द कोर कॉर्ड hastily slashed lay like a broken stem, and the cord, जो umbilical cord you can say, it was hastily slashed and it laid like a broken stem at a point, and the skin was of a lovely texture. बच्चे की स्किन बहुत ही स्मूथ और टेंडर, सॉफ्ट एंड टेंडर थी. इट वाज ऑफ अ लवली टेक्सचर. द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक. सर जो था बिल्कुल ऐसा जैसे होता है ना, एक तो स्ट्रेंथ से आप अपनी नेक को होल्ड करके रखते हो, एक जब आपकी नेक में पावर नहीं होती तो आप ऐसी गर्दन इधर उधर लुढ़कती रहती है. इट वाज जस्ट लाइक दैट. एंड द लिम्ब सीम्ड बोनलेस. और जो उसके लिम्स थे, द लेग्स जो थी उसकी, वो ऐसे लटक रही थी जैसे इट वाज बोनलेस. नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन एक लाइफलेस ह्यूमन बीइंग कैसा होता है. तो यू जस्ट कैन सी कि एक लाइफलेस बॉर्न जो बच्चा था वो कैसा दिख सकता है. स्टिल नीलिंग, एंड्रयू वाज स्टिल नीलिंग एंड एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हगार्ड फ्राउन. एक हगार्ड सा, एक टेंस्ड फ्राउन के साथ में. दैट इज ही वाज जस्ट गिविंग अ एक्सप्रेशन, फ्राउनिंग एक्सप्रेशन ऑन द फेस कि अब क्या करूं. एंड ही वाज जस्ट स्टेयरिंग एट द चाइल्ड. द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग. वो डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे थे बच्चे को देख करके. एंड ही सेज कि जो वाइटनेस है ना इसके चेहरे पे, इट जस्ट मीन्स वन थिंग, एंड दैट इज व्हाट? Aphaxia pallida. Now this aphaxia pallida is what? Aphaxia pallida is a disease. एक प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को. इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड डिजीज जिसको हम कहते हैं इट्स अ काइंड ऑफ सफोकेशन और अनकॉन्शियस कंडीशन which is caused by the lack of oxygen and excess of carbon dioxide in the blood. Now जब ये पोजीशन पे आप आते हो कि आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम है, एंड बिकॉज यू आर सफोकेटेड एंड यू आर इन अनकॉन्शियस कंडीशन, अलॉन्ग विद दैट कुछ चीजें एड ऑन हो जाती है. दैट द पेलनेस ऑफ द स्किन, आपकी स्किन पेल हो जाती है, वीक हो जाती है, जो आपकी पल्सेस होती है वो वीक हो जाती है, एंड यू लॉस्ट द रिफ्लेक्सेस ऑफ योर बॉडी. तो यही सिचुएशन हो गई किसके साथ में? इस छोटे से बच्चे के साथ में. तो नाउ ही डायग्नोज दैट इस बच्चे को क्या हुआ है? एफेक्सिया पैलिडा. एंड उनका माइंड बहुत ही अननेचुरली टेंस था. इट रेज्ड बैक टू अ केस he once had seen in the Samaritan to treat that had been used, treatment that had been used. अब डॉक्टर्स क्या होते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पास्ट हिस्ट्रीज को, डायग्नोसिस को यूज करते हैं टू डू व्हाटएवर न्यू. तो उन्होंने देखा दैट ही सेज कि उन्होंने रेस बैक किया टू अ केस जो उन्होंने एक बार सुना था. कहाँ पे? ही हैड सीन, वो केस उन्होंने देखा था समारियन नाम की एक प्लेस थी वहां पे, टू द ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट वहां पे ऐसी ही एक सिचुएशन में, इसी एक कंडीशन में यूज किया गया था. इंस्टेंटली ही वाज ऑन हिज फीट, एंड इंस्टेंटली वी कैन से दैट ही वाज ऑन हिज फीट. वो क्या थे? ही वाज स्टैंडिंग बैक ऑन हिज फीट, पैरों पे खड़े हुए वो फटाफट से, बिकॉज ही गॉट समथिंग दैट व्हाट ही शुड डू नाउ. गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर. उन्होंने नर्स को, ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन्स टू क्विक क्विक. उन्होंने बोला फटाफट जाओ 2 बेसिन्स लेके आओ. दैट इज काइंड ऑफ 2 टब्स लाइक एक इंस्ट्रूमेंट्स लाओ. नर्स को उन्होंने फटाफट से ऑर्डर उन्होंने दिया, थ्रू एन ऑर्डर टू हर, एंड ही सेज एक में हॉट वाटर लाना, एक में कोल्ड. बट डॉक्टर, शी faltered, her eyes on the pallid body of the child. Quick, he shouted. उसने बोला बट डॉक्टर, वो उस बच्चे को देख रही थी, द बॉय, द चाइल्ड लाइंग डेड, पैलिड बॉडी ऑफ दैट चाइल्ड. और उन्होंने बोला फटाफट बोलो तुम्हें क्या बोलना है. स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट खींचते हुए, लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगेन अ स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन. और उन्होंने एक स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन उस बच्चे को देना स्टार्ट किया. अब वो गर्ल तो कुछ नहीं बोली, वो जो नर्स थी, शी डिडंट, नॉट गर्ल, शी वाज अ नर्स एंड शी डिडंट सेड एनीथिंग, शी वाज अ ओल्ड नर्स. वो गई फाइनली 2 बेसिन्स लेके आई, 2 टब्स लेके आई, द यूअर, द बिग आयरन कैटल, और एक बड़ी सी आयरन कैटल लाई जिसमें हॉट वाटर था. फ्रेंटिकली एंड इमीडिएटली शी स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन एंड अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर. उतना गर्म पानी उसने मिक्स किया जितना गर्म उनका हाथ बियर कर सकता है. देन like some
क्रेजी जगलर, आपने जगलर्स देखे हैं जो बॉल्स को इधर उधर दोनों हाथ के बीच में जगल करते हैं, एंड यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि बॉल किस हाथ से आ रही है और किस हाथ में जा रही है। सिमिलरली इन दैट मैनर उन्होंने उस बच्चे को जगल किया बिटवीन व्हाट, बिटवीन द कोल्ड वाटर बेसिन एंड द हॉट वाटर। पहले बच्चे को वो कोल्ड में डालते, देन इन अ हॉट, देन अगेन इन अ कोल्ड हॉट, कोल्ड हॉट, कोल्ड हॉट, इस तरह से, सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी गेट्स चेंज्ड। Now he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, पहले उसको icy cold water में and then into the steaming bath, और फिर उस steaming water में। इतना गर्म भी नहीं था पानी that the child should burn, बच्चा जल ही जाए, नहीं, बट आइसी एंड स्टीमिंग बाथ वाली सिचुएशन थी। वो इतना पानी था, डॉक्टर ने डालने से पहले अपना हाथ उस पानी में देके चेक किया था दैट अगर उसका हाथ उस टेम्परेचर को बेयर कर पा रहा है या नहीं। Now doing this juggling work 15 minutes passed. Sweat was now running into Andrew's eyes, blinding him. इतना पसीना आ रहा था because of the exertion that sweat की drops थी just came down and वो drop होती होती एंड्रयू की आंखों में चली गई and it was blinding Andrew. And one of his sleeves hung down, और उनकी एक sleeve was just hanging down, dripping, and it was just dripping. His breath came pantingly, सांस हाफ रहा था वो, he was breathing pantingly, but no breath came out of the lax body of the child. But वो जो lax unconscious body थी ना उस बच्चे की, उसमें से कोई breathing की एक symptom भी नहीं मिला, no breath came out of that body. Desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness. अब एक बढ़ती हुई नाउमीदी प्लस एक desperate sense of defeat, हार का एक जो सेंस होता है ना, now it was pressing Andrew. He felt, उन्होंने फील किया, the midwife watching him in stark concentration. वो जो midwife जो नर्स थी वो उसको बहुत ही stark concentration से देख रही थी, while there pressed back against the wall where she had all the time remained. कहाँ पे? उसी दीवार के पास में जिसका सहारा लेके, pressed back means सहारा लेके, all the time she had remained, her hands pressed on her throat. उसने अपने हाथों से ऐसे अपने गले को पकड़ रखा था, because uttering no sound, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, her eyes burning upon him, बस आंखें उसको देख रही थी। अब was the old woman, एक तरफ तो नर्स, दूसरी तरफ ये old woman, that is the grandmother of that child. He remembered her longing for a grandchild. उन्हें याद आया कि ये कितना तड़फ रही थी इस अपने grandchild के लिए। as great as he had been her daughter longing for the child, उतना ही greatly she has been longing जितना कि इनकी daughter launch कर रही होगी अपने child के लिए। All dashed away now, futile beyond remedy. Now all these thoughts, all these wishes are away now, they are futile, waste, बर्बाद, कुछ भी नहीं होना, and beyond remedy, इनका तो कोई इलाज भी नहीं है। Now this way, now he is going to see कि अब आगे वो further क्या करते हैं। Now we are going to finish it till this part and tomorrow we'll continue and finish the chapter. ठीक है, जो साइंस वाले बच्चे तो पढ़ चुके हैं, उन्हें तो पता है आगे क्या हुआ था, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए let this curiosity remain and we are going to solve this curiosity in tomorrow's class. Okay, चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर कोई डाउट्स होंगे तो कल पूछना, बिकॉज इट्स जस्ट लेस देन 1 मिनट, तो अगर आप कुछ पूछते भी हो तो क्लास इज गोइंग टू स्टॉप इन बिटवीन। सो टुमारो बिफोर बिगिनिंग द क्लास विल सॉल्व द डाउट्स रिलेटेड टू दिस पार्ट। इतना इसको आप रीड कर लेना एंड द रिमेनिंग जो है उसको अपन कल करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।